So today we will going to discuss about a new chapter, that is human health and diseases, and the topic is disease type, causes and its transmission. So first, as we know, here will be the introductory part. In the introductory part we will going to see about the simple definition of a disease. So I have put this definition in a few points to make you understand very nicely. See, disease person or an unhealthy person. What are the things an unhealthy person will going to be up? A disturbed state of body. Of course, a body will be in disturbed state. That means it will not going to function properly. If a body will be in disturbed state, that means a person is having any kind of disease. Secondly, bodily function, improper bodily function. If the body function will not going to function properly, a disturbed state of body leads to improper body function. And how does we will going to know about that a person is having disease? He will going to show some or the other kinds of signs and symptoms. So sign and symptoms will play a major role in defining the disease, because nobody will going to know until and unless some kind of signs or symptoms will be occurring in our body. So this is the simple definition of disease. If a person is having disturbed state of body and bodily function, and which will be going to appear through signs and symptoms, that will be known as the disease. So next, here it is an introductory part. So next we will going to go in the types of disease. See, types of disease. Basically, disease will be of two types. First will be the congenital, and second will be the acquired. These are the basically two main types of disease, congenital and the acquired. Congenital, basically you can say that it is an inborn disease. You can say that. The another name of congenital is a inborn disease. And acquired, that we will going to gain after the birth in any stages of our life. That will be acquired. That means it will not going to present from the birth itself. We will going to acquire it, or we will going to accept it from the other environment. See, congenital, basically inborn. So few points are there in order to explain you congenital diseases. First of all, it is related with the genetics. That means this kind of disease are transferring from our parents to the offspring. That means if a parent is going to have some disease, they will ultimately transfer it to the offspring. They are non-communicable. That means it will not going to affect the other person who is not belonging to that family. So congenital disease are basically transferring in the generation to generation. That means if parents from the offspring, they again get to the other offsprings. Secondly, it is non-spreadable, or you can say that it is a non-infectious disease. Non-infectious disease. That means it will not going to affect any person sitting or having eating behind you who does not belong to that particular family. See, third, it can be permanent or generally not curable. Of course, it could not be curable, because it is changing, it is happening because of the genetics. So we can't change the genes of our parents, or we can't change the genes of the offspring. So it is basically non-curable. It is a non-curable types of disease. So example like color blindness or hemophilia, comes under the following diseases. So
congenital, basically they are the inborn disease. They are transferring from parents to the offspring. They are totally genetics type of disease, because here you can see congenital, it is given over there. That means it is transferring through the genes. It is transferred from one generation to another generation with the help of genes. It will be non-infectious, it will be non-curable. So here the example, acquired disease. Basically acquired disease are the disease which we got after the birth, which will be going to get the after the birth, and it could be of basically two types. First will be the communicable disease, and second one will be the non-communicable disease. That means it can be infectious and it can be non-infectious also. Communicable diseases are those diseases which are spreading from one person to another person and coming with contact with that particular person. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को डिजीज़ है, इफ़ दिस इज़ अ डिजीज्ड पर्सन और एन अनहेल्दी पर्सन, अगर कोई अनदर पर्सन उस अनहेल्दी पर्सन्स के कॉन्टैक्ट में आता है, देन दिस डिजीज विल बी गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं करते हैं. इसमें इसके भी फॉलोइंग टाइप्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आप लोगों का डीजेनरेटिव डिजीज, सेकेंड है डेफिशिएंसी डिजीज, थर्ड है आप लोगों का एलर्जीज, फोर्थ है कैंसर और वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज. See, now we will going to deal about the degenerative disease. Degenerative disease होता क्या है? अगर आप लोगों की किसी बॉडी ऑर्गन्स, जैसे मान लो कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, अगर ये किसी बॉडी के ऑर्गन्स अगर किसी तरह से फंक्शन नहीं करते हैं, ऐसे जो नॉन कम्युनिकेबल है, अगर आपकी बॉडी का कोई एक फंक्शन बॉडी ऑर्गन फंक्शन नहीं कर, दैट डज नॉट मीन कि किसी और के बॉडी का भी वो बॉडी ऑर्गन फंक्शन नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो आपकी बॉडी का ही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. तो बेसिकली डीजेनरेटिव डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ होता है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के इम्प्रॉपर फंक्शन करने की वजह से होता है. दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, उसमें किसी टाइप का क्या नहीं हो, फंक्शन ना हो पाए, तो ये डीजेनरेटिव डिजीज़ के अंदर. डेफिशिएंसी हम लोग को पता है, हम लोग बहुत सारे डेफिशिएंसी के बारे में जाते हैं. जैसे मतलब कोई भी डिजीज़ हम लोग को विटामिन की कमी से होगी, कोई डिजीज़ हम लोग को प्रोटीन की कमी से होगी. तो बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से होने वाले जो डिजीजेस होते हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज़ की कम अगेंस्ट आता है. एलर्जी, अगेन ये हम लोग को पता है कि जो एलर्जीज होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है. जैसे कोई फॉरेन सब्सटेंस जिसको हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमको एलर्जी हो जाती है उस चीज़ से, और हमारा बॉडी उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर सकता है, सेंसिटिविटी शो करता है उसके लिए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. कैंसर, हम लोग को पता है कैंसर जो होता है वो बॉडी के इम्प्रॉपर सेल ग्रोथ की वजह से होता है, तो ये भी नॉन कम्युनिकेबल है. ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन को कैंसर है तो उसका कैंसर किसी और पर्सन में क्या हो, ट्रांसफ़र हो, अनटिल अनलेस उसका ट्रांसफ़र होने का कोई रीज़न हो. तो कैंसर भी क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आता है. और उसके बाद अदर डिजीज़ आते हैं, जैसे मान लो आपको फ्रैक्चर हो गया, या आप लोगों को किसी तरह से एक्सीडेंट्स हो गया, या आप लोगों का बॉडी कहीं से डिसलोकेट हो गई, तो ये सारे डिजीज़ेस किस कंडीशन में आते हैं, अदर डिजीज़ में. तो ये आप लोगों के बेसिक दो टाइप्स ऑफ डिजीजेस, एक होते हैं कोजेनाइटल जो कि आप लोगों को इनबॉर्न मिलते हैं, और दूसरा होता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉजेस ऑफ डिजीज. सी हियर ए वर्ड इज गिवन ओवर हियर, etiology. That means the study of causes of disease is known as the etiology. So basically the disease is caused by the agents. Agents are the substance which are responsible for causing the disease. So you can say that in the etiology we will going to study about the various kinds of disease causing agent. See, first of all there will be a biological agent
or you can say that there will be a pathogens. For example, bacteria, virus, they all are the biological agent which are responsible for causing the diseases. It's come the bacteria, virus, fungi, protozoan, helminths, insect and all other organisms present in this world come under this biological agent, because they are the living organism, and the disease which are caused by the living organism comes under the biological agent. Second will be the nutritive agent. As we know, they are the deficiency diseases also. So basically the carbohydrate, protein, fats, vitamins, water, they all are the nutritive agent. If they will be not if we will not going to have in the exact quantity, अगर हमने न्यूट्रिटिव एजेंट को एग्जैक्ट क्वांटिटी में नहीं लिया गया तो न्यूट्रिटिव एजेंट जो होता है वो एज हमारी बॉडी को डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. केमिकल एजेंट्स कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे कुछ स्पोर्स हो गए या पॉलन ग्रेन हो गए, जिससे हमारी बॉडी को एलर्जीज होती है. वो बेसिकली किसके अंदर आते हैं? केमिकल एजेंट के अंदर. मतलब हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स के कांटेक्ट में आने पे, जैसे पॉलन ग्रेन हो गया, जैसे स्पोर्स हो गया, या फिर हम लोग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके कांटेक्ट में आने से हम लोग बेसिकली क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं. फिजिकल एजेंट के अंदर आप लोगों का हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं. मान लो हीट, ठंड ज़्यादा लग रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा, तो वो फिजिकल एजेंट के अंदर आता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी डैमेज होती है. मैकेनिकल एजेंट जो होते हैं वो बेसिकली जो इंजुरीज होते हैं, जैसे हमको फ्रैक्चर्स हो गया, स्प्रेन्स हो गया, डिसलोकेशंस हो गया, वो सारे किस में आते हैं? मैकेनिकल इंजरीज के अंदर, जहाँ पर हमारी बॉडी बेसिकली किसी एक्सीडेंट के थ्रू क्या होती है, किसी तरह से अदर डिजीज के थ्रू मतलब डैमेज होती है, तब भी हमारा बॉडी क्या होगा? इम्प्रॉपर फंक्शन करेगा. तो बेसिकली हमको ये चारों चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डील नहीं करना है. हम लोग सिर्फ किसके बारे में डील करेंगे? बायोलॉजिकल एजेंट, दैट मीन्स दी पैथोजन के बारे में. तो पैथोजन से रिलेटेड हम लोग कहाँ जाएंगे? ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ में, टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बेसिकली 3 मेजर टाइप्स के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, और तीसरा होता है आप लोगों का एयरबॉर्न. तो डायरेक्ट, अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सनस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर पे किसी को मान लीजिए स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स या कोई भी ऐसी बीमारी हुई है, अगर आप लोग उसके लीसन्स या जहाँ पर वो घाव हुआ है मान लीजिए बेसिकली, तो अगर वो आप बॉडी इनटू उसकी बॉडी आपकी बॉडी इन कांटेक्ट में आती है, तब क्या होता है? वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, यानी आपकी बॉडी उसकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, तो वहाँ पर क्या होता है? आप लोगों को डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है. ड्रॉपलेट, जब भी आप स्नीज करते हो, कफ करते हो, स्पिट करते हो या बात करते हो, तब क्या हो जाता है? आपके बॉडी से कुछ ड्रॉपलेट्स ट्रांसफ़र होते हैं टू द अदर पर्सन्स. तो ये ड्रॉपलेट जो होते हैं बेसिकली जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं आपकी बॉडी के, वो क्या करते हैं? इन्फेक्शंस बियर करते हैं. और ये इन्फेक्शंस क्या करते हैं? जैसे अभी कोरोना फैला है, तो जो कोरोना हो रहा है वो क्या हो रहा है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, बोल सकते हैं. इफ़ अगर कोई पर्सन आपके सामने कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो क्या हो जाता है? जो कोरोना का वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या होगा? दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो वायरस क्या हो जाता है? दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है. तो ये एक प्रॉब्लम है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का. इससे भी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ होता है ड्रॉपलेट से. ड्रॉपलेट के अंदर आप लोगों का कॉफिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को निमोनिया है या ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये भी क्या होता है? कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू उसका जो भी पैथोजन होता है वो क्या हो जाता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है. कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, मान लो आप लोगों का कहीं पे एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, और एक्सीडेंट वगैरह जहाँ पे हुआ है वहाँ पर क्या हो रहा है? उस सॉइल में पर्टिकुलर कोई पैथोजन है, तो वहाँ पर जैसे ही आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी कट लग चुकी है वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो आपका बॉडी सॉइल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो सॉइल के पैथोजन आपकी बॉडी में क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं. तो ये भी एक प्रकार का रीज़न है. बाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेबीज. हम लोग को पता है कि डॉग के इन्फेक्शन से डॉग बेसिकली क्या करता है? रेबीज का वायरस कैरी करता है, और जैसे ही डॉग हम लोग को बाइट करता है, रेबीज वाला वायरस हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है. ट्रांसप्लांटेशन, प्लासेंटल, ये होता है आप लोगों का मदर से फीटस में.
दैट मीन्स अगर किसी मदर को पर्टिकुलर डिजीज़ है तो वो मदर से डायरेक्ट किस में ट्रांसफर होता है, फीटस में। तो ये भी क्या है आप लोगों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर है। सेकेंड, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय वेक्टर, बेसिकली मॉस्किटोस वगैरह, जैसे कोई भी मॉस्किटो या कॉकरोचेस, ये हमारे वेक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ को एक पर्टिकुलर जगह से लाके हमारे बॉडी में ट्रांसमिट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। व्हीकल बॉर्न के अंदर आ जाता है आप लोगों का फूड, वाटर, ये सारे व्हीकल बॉन्ड्स हैं। दैट मीन्स कोई भी डिजीज़ फूड और वाटर के थ्रू या ब्लड के थ्रू हमारे अंदर क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो ये व्हीकल बॉर्न डिजीज़ के अंदर आता है। तीसरा जो है वो है हम लोग का एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, एक फॉर्माइट और दूसरा अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर। सी, कोरोना वायरस बेस्ट एग्जाम्पल है इस एयरबॉर्न डिजीज़ का। फॉर्माइट बेसिकली आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स जैसे कि आपके घर पे कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट हो, जैसे आप लोगों का टॉय हो गया, आप लोगों के गारमेंट्स हो गए, सोप हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी एक ऐसा आर्टिकल्स जो पर्टिकुलर टचिंग से क्या होगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। जैसे मान लो कि टॉयज़ के ऊपर या बुक्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर वायरस है और आपने बेसिकली क्या किया, उसको टच किया, तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर, एज वी नो कि मान लो कि किसी भी सब्सटेंस पे क्या है, वायरस है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी डिजीज दोनों आते हैं इसके अंदर। तो मान लो कि क्या है, आप लोगों के अनक्लीन हैंड्स है और उस अनक्लीन हैंड से या डिजीज हैंड से आप लोगों ने किसी और को हैंडशेक किया या फिर बात किया या फिर टच किया, तो क्या हो जाएगा, वो आपके अनक्लीन हैंड्स और फिंगर्स से वो डिजीज क्या होगा, किसी और में भी क्या होगा, ट्रांसमिट होता है। तो कोरोना वायरस दैट इज कोविड-19 बेस्ट एग्जांपल है एयरबॉर्न डिजीज का। और ये हम लोग आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।